بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے آذربائیجان اور آرمینیا کی جو جنگ جاری ہے اس کے بارے میں۔ چونکہ آج رات 12 بجے سے سیز فائر ہو جائے گی اور یہ سیز فائر کا اعلان کیا جا چکا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ کیا حالات تھے، کیوں سیز فائر ہوئی، اور پھر جو سیز فائر ہوئی ہے اس کا آگے کیا ہوگا، کیا واقعی یہ مسائل حل ہو جائیں گے اور دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور مختصراً پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ آذربائیجان اور اس کا جھگڑا کیا ہے آرمینیا کا، اور اس جنگ کے بارے میں کافی ساری تفصیل سے یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ صرف اتنا بتا دینا یا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ 1994 میں یہاں پہ جنگ بندی ہوئی، جو کہ 4 سال جنگ ہوتی رہی، 30,000 لوگ مارے گئے، اور آرمینیا نے زبردستی نکورنو کاراباخ پہ بھی قبضہ کیا، اور اس کے علاوہ 27 کے قریب اضلاع جو کہ آرمینیا کے بارڈر اور نکورنو کاراباخ کے درمیان میں علاقہ تھا آذربائیجان کا، اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب یہ علاقہ جو کہ آذربائیجان کا قبضے میں چلا گیا آرمینیا کے، تو یہ نیچرلی ایک فساد موجود تھا۔ پچھلے 30 سال میں یہ مسئلہ حل نہ کیا جا سکا، جبکہ اس کو حل کرنے کی ذمہ داری فرانس، رشیا اور امریکہ نے اٹھائی ہوئی تھی۔ ان کا گروپ تھا جسے منسک گروپ کہتے ہیں، اور اس گروپ نے فیصلہ کرنا تھا، اور اس گروپ نے دونوں کو بٹھا کے مذاکرات کے میز پہ تو یہ طے کرنا تھا کہ اس کو کیسے واپس کرایا جائے، علاقے کو آذربائیجان کے پاس واپس کرانے کی ضرورت اس لیے تھی کہ اس پہ 4 کے قریب سیکورٹی کونسل کی قراردادیں منظور ہو چکی تھی، اور ان قراردادوں پہ آرمینیا نے عمل کرنا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں آرمینیا نے یہ علاقہ خالی کر کے تو حوالے کرنا تھا آذربائیجان کے۔ لیکن آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی طاقتیں اور قراردادیں موجود ہیں، پوری دنیا تسلیم کرتی کہ یہ سارا علاقہ جو آذربائیجان کا اس کو واپس جانا چاہیے، لیکن یہ کسی وجہ سے یہ علاقہ واپس نہیں کیا جا رہا، اور آرمینیا کا قبضہ رکھا ہے، یہ قوتیں اس کو ہٹانے کو تیار نہیں۔ سو لازمی بات ہے کہ انصاف نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک فیور کی جا رہی تھی آرمینیا کو، اور اس طرفداری کی وجہ سے یہ مسئلہ جوں کا توں تھا۔ دوسری طرف یہ کہ رشیا نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہوا آرمینیا کے ساتھ، اور پھر آرمینیا میں ہی رشیا کا اپنا ایک دفاعی اڈا بھی موجود ہے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے رشیا کے بھی مفادات آرمینیا کے ساتھ ملتے، تو عالمی معاملات ایسے ہیں کہ یہاں منافقت ہے، انصاف بالکل نہیں ہے، اخلاقیات کا بھی عمل دخل نہیں ہوتا، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے مفادات کی روشنی میں طے کی جاتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ ایک طرف تو یہ تینوں ملک جو ہیں یہ جنگ بندی کا مطالبہ کرنا شروع ہو گئے، فرانس بھی، رشیا بھی اور امریکہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمینیا نے امریکہ سے اپیل کی کہ آپ دخل دیں اس میں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی رونا رویا کہ آپ نے ٹرکی کو F-16 اس لیے دیے تھے کہ وہ آگے آذربائیجان کو دے اور ہمارے گھروں پہ آگے بمباری کریں اور ہمیں تباہ کریں، یہ آپ نے زیادتی کی۔ لہذا یہ اپیل جب ہوئی تو ٹرمپ غالباً اس پہ کچھ ایکشن کرتے، لیکن ٹرمپ کو کورونا کا مرض ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل چلے گئے، اور یہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ ٹیلی فون پہ بات کرنی تھی ٹرمپ نے اور آرمینیا کے لیڈر نے، لیکن وہ بات نہ ہو سکی۔ لیکن بہرصورت امریکہ نے ایک سٹانس لیا کہ جنگ بندی کی جائے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کینیڈا میں بھی آرمینیا کے بہت سارے لوگ آباد ہیں، کیونکہ یہ کرسچنز ہیں، اور کرسچن جہاں جہاں ملک ہیں کرسچین کنٹریز، وہاں یہ آبادی موجود ہے، اور انہوں نے آرمینیا نے کینیڈین گورنمنٹ کے اوپر بھی دباؤ ڈالا کہ آپ جنگ بندی کا مطالبہ کریں یا ان کے خلاف ایکشن لیں، آذربائیجانی فورسز کے خلاف، کیونکہ یہاں پہ ہمارے حقوق ہیں اور آپ کینیڈا میں بیٹھ کے اس طرح خاموشی نہیں اختیار کر سکتے۔ سو کینیڈا نے بھی اپنا سٹانس لیا، آسٹریلیا میں بھی اسی طرح آرمینین موجود ہیں، آسٹریلیا نے بھی، اور فرانس تو پہلے سے پیچھے لگا ہوا تھا، وہاں آرمینین بھی ہیں، لیکن فرانس بہت زیادہ طرفداری کر رہا تھا آرمینیا کی، اور بار بار دھمکیاں دے رہا تھا کہ یہاں سے ٹرکی سپورٹ کرنا بند کرے، آذربائیجان اپنی افواج پیچھے کرے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ایک پریشر بن رہا تھا۔ اسی اسنا میں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں رشیا کے مسٹر پوٹن، انہوں نے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کو، یعنی آرمینیا اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کو دعوت دی،
उनको कहा कि आप मॉस्को आ जाएं और यहाँ पे बातचीत की जाए और बातचीत में हम फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। अब 10 घंटे बातचीत जारी रही और उसके बाद एक ऐलान किया गया जहां ये कहा गया कि जनाब हफ्ते की रात 12 बजे जंग बंदी हो जाएगी और जंग बंदी की मजीद तफसीलात के कैसे कैसे ट्रुप्स की कहाँ लोकेशन होगी, ये चीजें आप बाद में तय कर लीजिए। यानी दोनों मुल्क आर्मीनिया और आज़रबाईजान आपस में मुज़ाकरात करके ये तय करें कि उन्होंने जंग बंदी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है और लोकेशंस क्या होंगी। यहां तक तो हो गई जंग बंदी। अब बात यह है कि ये अमन मुज़ाकरात जो कि फ्रांस और रशिया ने और अमेरिका ने करवाने हैं, ये पहले भी 1994 से लेके आज तक ये बैठे हुए, तो 1990 से आप कह लीजिए तकरीबन 30 साल हो गए। ये जिम्मेदारी थी इनकी कि इन्होंने करना है, लेकिन चूंकि जानबदारी थी तो ये करारदादें इंप्लीमेंट हुई। अब इस मामले में टर्की ने जब सपोर्ट किया आज़रबाईजान को, तो उनका स्टांस यही था कि या तो आप 30 साल में ये झगड़ा चुका देते, 30 साल आपने इनको इसी तरह लटकाए रखा, और अब जब आज़रबाईजान अपने ताकत से ये लेना चाहता है तो आप कह रहे हैं कि जी जंगबंदी कर दें। मसले का हल कैसे होगा? और अगर जंगबंदी हो भी जाती है तो वो आर्जी होगी, क्योंकि जब तक आप इलाका वापस नहीं लेके देते आज़रबाईजान का, तो जंगबंदी का फायदा क्या? इस असना में मुख्तलिफ सफारती कार्रवाइयां शुरू हुई। पाकिस्तान का नाम आया कि हमने जंग में बड़ी उनकी मदद की है, टर्की का नाम आया, बल्कि टर्की पे इल्जाम आयद कर दिया कि जी वो सीरिया से किराए के वो फौजी लेके आ रहे हैं। ये सारी बातें झूठ था। बहरहाल आज़रबाईजान ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का भी, टर्की का भी, कि आपने हमारी मदद की है, और उन्होंने साथ ये कहा कि आपने मदद की है असूल की बुनियाद पे। आर्मीनिया ने जंग छेड़ी और आज़रबाईजान ने जवाबन हमले किए, और आज़रबाईजान चूंकि अपने ही इलाके छुड़ाने चाह रहा है और अपने ही इलाके में जंग लड़ रहा है, लिहाजा हक बजानब है। हमको उनका ख्याल था, उनका कहना यह था कि हमको आर्मीनिया के इलाके में तो नहीं घुसे कि जैसे हमें कहा जाए कि हम जारियत कर रहे हैं। लिहाजा एक असूली उनका मौक़िफ़ था जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान ने और टर्की ने उनकी मदद की, और इससे उनको काफी तकवीयत मिली है, इंटरनेशनली भी है। और यही वो चीज थी जो कि रशिया को माने थी। अब ईरान ने भी इसमें, ईरान न्यूट्रल रहा तकरीबन, और यही सोच थी कि ईरान ये बार बार कह रहा था कि हमें खतरा लगता है कि यहाँ पे एक रीजनल यानी इलाकाई जंग न छिड़ जाए बड़े पैमाने पे। यानी दूसरे लफ्जों में उनका ख्याल था कि टर्की और रशिया के दरमियान जंग ना हो जाए, क्योंकि रशिया तो मुआहदा करके उनके साथ, आर्मीनिया के साथ उन्होंने दिफाई मुआहदा किया हुआ था, और टर्की जो है वो पूरा सॉलिडली बड़े दबाव से वो आज़रबाईजान के पीछे खड़ा था। तो ये एक जंग का खतरा था जो कि इन मज़ाकरात में जंग बंदी की वजह से टल गया। लेकिन ये जंग बंदी, फिर टर्की का स्टांस यही है कि ये आर्जी होगी। आज़रबाईजान ये कहता है कि हमने एक मौका दे दिया, और अब ये इन्हसार इस बात पे है कि आर्मीनिया कितनी जल्दी इलाके खाली करता है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम इनसे फिर ताकत के जरिए करवाएंगे। अब बात यह है कि जो सूरत हाल थी, आर्मीनिया क्यों जंग बंदी के लिए भाग दौड़ कर रहा था, क्यों दबाव डाल रहे थे हर तरफ, वो ये था कि आर्मीनिया के नुकसान बड़े हुए। उनके लोग भी काफी मारे गए, कहा जाता है कि 400-500 के करीब उनके लोग मारे गए, जिसमें सिविलियन भी शामिल हैं। उनके बहुत सारे फौजी अपनी पोस्टें जहां पे उनको मुतय्यन किया गया था वो छोड़ के भाग गए। खाली मोर्चे थे जिन पे कि आज़रबाईजान की फौज ने कब्जा करना शुरू किया। लिहाजा इस तरह आज़रबाईजान ने बेशतर इलाका खाली करा लिया। कहा जाता है कि तकरीबन 27 अजला थे, और नगोर्नो काराबाख का इलाका था, ये कब्जे में था आर्मीनिया के या आर्मीनियन सपोर्टेड आर्मी के, और वो अब उसमें से उन्होंने तकरीबन नगोर्नो काराबाख भी आधा के करीब खाली करा लिया है, और 8-10 अजला भी अपने उन्होंने वागुजार कर लिए हैं आर्मीनिया से। अब आर्मीनिया चूंकि यहाँ शिकस्त खा रहा था और अपनी पोजीशन और उसकी फौज भाग रही थी, तो ये उसके लिए बड़ा जरूरी था कि अपना इमेज और अपने इलाका जो कुछ कब्जे में उसको बचाने के लिए बड़ी कुव्वतों से, ताकतों से दबाव डलवाए, और दबाव के बाद ये किसी न किसी तरह एक जंगबंदी हो जाए। चुनाचे जंगबंदी हो गई। अब यह है कि अब चूंकि ये मुज़ाकरात होंगे जिनेवा में, जहां अमेरिका, फ्रांस और रशिया मिलके सुपरवाइज करेंगे, और ये उसमें आर्मीनिया और ये भी शामिल होंगे, तो टर्की ने भी ये स्टांस लिया है, पाकिस्तान का भी ये स्टांस है कि अगर ये तीनों कुव्वतें इंसाफ का साथ नहीं देंगी, गैर जानिबदाराना तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी, तो ये मसला हल होगा नहीं। अब ये वो चीज है जहां पे आके बात रुकती है।
मेरी अपनी तवक्को ये है, जो तजज़िया हम कर रहे हैं आगे, कि जो बड़ी कुव्वतों का रवैया है वो तो वही रहेगा, क्योंकि इनकी इनकी सियासत टोटली मुनाफकत की सियासत है, उसमें मफादात की सियासत है। हमें नजर आता है कि आर्मीनिया के पास एक ही अट्रैक्शन है, और वो ये रशिया के लिए तो ठीक है कि रशिया का वहां पे बेस है या उनका कोई माहिदा वगैरह है, लेकिन बाकी जो मगरबी दुनिया उनको सपोर्ट कर रही है वो सिर्फ इस वजह से कि ये ईसाई रियासत है। अगर ये ईसाई रियासत ना होती तो आप देखते कि बहुत जल्दी ये यूनाइटेड नेशन की करारदादें जो हैं वो इंप्लीमेंट हो चुकी होती हैं, इलाका खाली हो गया होता है, लेकिन ये नहीं कराया गया। सो इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि ये जो जो कुव्वतें ये मसला हल करने के लिए बैठी हुई हैं, वो 30 साल क्यों नहीं कर सकी, और आगे उनसे क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं। लिहाजा ये पॉसिबल है कि ये जो 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 जंगबंदी है ये कुछ अरसा तो रहे, लेकिन ये दोबारा जंग हो सकती है अगर 2 4 6 महीने के अंदर ये बड़ी कुव्वतों ने इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। यहां पे हम जिक्र करेंगे भारत का भी। वो बड़ी एक दिलचस्प कहानी है कि भारत इस वक्त इस मौका के ऊपर खामोश क्यों था, बिल्कुल चुप रहे। उनके सोशल मीडिया पे और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया पे जो बहस मुबासा चल रहा था, उनके अखबारात में बहस मुबासा चल रहा था, उसमें बहुत कहा जा रहा था कि भारत को फौरन आर्मीनिया का साथ देना चाहिए। इसमें तकलीफ क्या थी, क्यों देना चाह रहे थे वो आर्मीनिया का साथ? सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ। जब आजरबाईजान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार, उन्होंने मदद की, तो फौरन भारत में यह लहर उठी कि जनाब आप आर्मीनिया की तरफ जा खड़े हों। भारत अपने आप को एक सुपर पावर की तरह पोज करता है, और वो यूं अपने अपने अवाम को तो वो ये बावर कराता है कि दुनिया में जहां भी वो चाहें वो मिलिटरीली इंटरफियर कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं। लेकिन यहां पे कुछ उनके मफादात थे आजरबाईजान के साथ भी, और कुछ मफादात, कारोबारी मफादात आर्मीनिया के साथ भी मौजूद थे, जिसकी वजह से एक तो ये कारोबारी नुक्ता आ गया जिसमें थोड़ी रुकावट, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारत कैच 22 की सिचुएशन में था। वो ये कि अगर वो आर्मीनिया का साथ देते हैं तो आर्मीनिया जो है उसने तो 4 करारदादें जो अक़वाम मुत्तहिदा की हैं वो पूरी वो उनसे तस्लीम नहीं, या तस्लीम की है तो उन पर अमल नहीं कर रहा। तो भारत खुद कश्मीर में करारदादों पे अमल नहीं कर रहा। सो वो चैप्टर खुल सकता था कि जी आप अगर ये कहें आजरबाईजान का साथ दें तो उनको कहें कि जी करारदादों पे अमल करें, तो तब मुश्किल, क्योंकि खुद भारत नहीं करारदादों पे कश्मीर के मामले में कर रहा। और अगर आबादी की बुनियाद पे कहें कि जनाब चूंकि काराबाग नगोर्नो काराबाग में क्रिश्चियन या आर्मीनियन आबादी ज्यादा है लिहाजा उनके पास जाना चाहिए, तो फिर कश्मीर में मुसलमान आबादी ज्यादा है उसको पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। सो दोनों सूरतों में भारत का जो मौकफ था वो निगेट हो रहा था। लिहाजा भारत के ऊपर बड़ा प्रेशर होने के बावजूद उनके अपने अवाम का कि पाकिस्तान के मुखालिफ जाके खड़ा हों, उनको दाएं बाएं मारना पड़ा, और बिल आखिर एक न्यूट्रल सी पोजीशन रखी, एक गैर जरूरी सी इनइफेक्टिव सी पोजीशन रखी, जो कि गालिबन शायद भारत को ये वैसे कबूल ना होती, लेकिन यहां वो अपने ही नैरेटिव के हाथों फंस चुके थे। अब देखने की बात यह है कि आगे सूरत हाल क्या बनती है, क्या बड़ी कुव्वतें इस झगड़े से, आज जो जंग हुई, जो खून खराबा हुआ, उससे कुछ सबक लेती हैं, कुछ उससे इंसाफ की तरफ माइल होती हैं कि इंसानी जानें जाया जाएंगी, लिहाजा इसको पुरअमन तरीके से हल करा दिया जाए। ये देखने की बात है। मुझे इस पे शक है, शकू को शुबहत हैं, लेकिन भर सूरत ये एक आलमी सियासत का हिस्सा है, हमें देखना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।